Good morning, everyone. So already we started class. We have started for non-uniform quantization technique. Okay, and we have calculated quantization noise power, which is nothing but del square by 12. Okay, or a square by 12. That is you can say quantization noise. Quantization noise power del square by 12. You know that if the step size is fixed, okay, if del is fixed, okay, it is constant, then del square by 12, that is also remains constant. So whenever we are dealing with signal to noise ratio, okay, so in that case, it may be conclude that if the signal strength is higher, okay, if the signal strength is higher, then the signal to noise ratio would be higher. If the amplitude of the baseband signal or the modulating signal is lower, then signal to noise ratio must be lower. Okay, because the numerator signal to noise ratio, the noise part remains constant. So S by N, that is depends upon only the strength of the input signal. So as it is in the numerator, so the if the amplitude of the signal increasing, so that thereby that will increase signal to noise ratio. If the amplitude of the input signal decreasing, then signal to noise ratio also decrease. So it is a kind of this. मान लो यहाँ पे तुम लोग the input signal amplitude दिखा रहे हो. So input strength of the input signal is increasing in this way, and the along y-axis you are placing signal to noise ratio. Okay, so it would be some kind of linear relation. Okay, ये बढ़ेगा, input बढ़ेगा, strength, signal to noise ratio also be improving. So that is the problem behind the pulse code modulation system. This is not desirable at all. So thing is that always we will
should have the constant signal to noise ratio irrespective of the amplitude of the input signal for the better understanding or the better reproduction of the input signal. So it should be some kind of that. Okay, it should be constant with input amplitude. So this is for your non-uniform. Okay, so little red color what I am showing you. This is for non-uniform quantization. The change of signal to noise ratio with the strength of the input. But this is for uniform quantization. Okay, which is gradually increasing. So that problem can be overcome by means of non-uniform quantization technique because signal to noise ratio that should be constant. So when this increasing, this lower part also should be increasing. So lower part कैसे ये improve होगा? In that case, you have to improve the step size. So thereby is by n remain constant. Now if s remains is decreasing, then in that case the lower part also, there is the power part also, noise power part also be decreasing. So how to reduce the noise part? By reducing the step size length. But it is quite difficult to arrange this sort of variable step size in case of PCM system. Okay, so that is the most problem. So that can be overcome by means of compounding technique. Okay, that today I will discuss. So compounding technique. So compounder is the important circuit. Over here we are introduced. Okay. So let us go for the compounding technique. So what we'll do here? Compounding means it's a combination of compounder and expander. Compounder, compressor, and expander. So compressor means you are compressing. That means it is uh, just reducing the amplitude of the high level. Okay, keeping the lower portion, lower amplitude of the signal unchanged. Okay, so क्या हो गया? Signal to noise ratio remains constant. Now, after compressing, that signal passes through uniform quantizer. Okay, uniform quantizer. So क्या होगा? Signal to noise ratio remains constant. Now at the receiver, what will happen? The reverse operation of the input section will be done here. That means यहाँ पे compressor था, यहाँ पे expander होगा. That means those signals which was previously compressed, now those signals must be expand. Okay, so just you give it to its previous state. Thereby there will be no change. But in the meantime, what you have done, you have maintained a constant signal to noise ratio. That's why a compounding circuit come into the consideration. So compounding means it's a combination of two words, compressing and expanding. That is compounding. And compounder means compressor and expander. So what its property that will be discussed. So compressor is being used in the transmitter section, expander is being used in the receiving section, and their operation is completely opposite to each other. One is compressing, other is improving the strength. Okay. So let us no. This is the compounding curves. So this is your compression, this is your expansion. See, so compression means this portion, this part actually is happening in the transmitting section. What is done? देखो, जो input strength का देखो यहाँ पे, input strength very small यहाँ पे, and that is increasing gradually increasing. This means input voltage means the strength is improving. मान लो यहाँ पे 0 voltage है, 2 voltage है, 4 voltage, 6 voltage, 8 voltage, 10 voltage है, some kind of that. तो देखो
In the lower cases, when the strength of the input voltage is low, then the output voltage is higher. When this voltage, input voltage gradually increasing, then this output voltage gradually decreasing. मीन्स क्या हो गया, देखो हाई वोल्टेज के लिए आउटपुट में कम वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए कंप्रेशन हो रहा है. So it will be more clear if I show it in the whiteboard. देखो, make it clear. इधर क्या ले रहे हैं हम, इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ. इधर क्या हो रहा है, देखो माउस में हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इधर कांस्टेंट हो गया धीरे. ओके, जस्ट वेट, वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट वेट ऑन फॉर 1 मिनट. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. So along x-axis you are just giving the strength of the input signal. Okay, it may be 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, some kind of that. It is increasing. Just try to follow the logic. So this is the input. Okay, input. और इधर क्या होगा, आउटपुट, कंप्रेसर आउटपुट. ओके, दिस इज द कंप्रेसर आउटपुट. सो पहला क्या होगा, it will increase largely, then gradually it will be constant. So देखो, मान लो यहाँ पे 0 वोल्टेज, then it is मान लो 2 वोल्ट, this is 4 वोल्ट, this is 6 वोल्ट, some kind of that. तो देखो 2 वोल्ट के लिए आउटपुट कितना है, कितना सा. सो इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है. देखो see the high voltage, मान लो 8 वोल्ट. देखो 6 एंड 8 में कितना फर्क है, वेरी स्लो, वेरी लो. तो क्या हो गया, देखो कितना, कितना सा, और 4 एंड 6 में इतना सा. सो क्या हो रहा है, दिस सर्किट क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिजाइन इन सच ए वे दैट जो आउटपुट में, इनपुट में जो हाई वोल्टेज है उसका इनपुट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, को लो कर देगा, कंप्रेस कर देगा. तो क्या होगा, जो सिग्नल स्ट्रेंथ का हाई वैल्यू था, सिग्नल बाय नॉइज रेशियो, सिग्नल का वैल्यू हाई वैल्यू था, वो कंप्रेस हो गया, ठीक है. तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रह जाएगा. लेकिन रिसीवर में वो क्या होगा, जितने हम लोग कंप्रेस किए थे जो रेशियो में, उतना ही तुमको वो एक्सपांड करना चाहिए. देखो यहाँ पे हाई वोल्टेज में जो 6 है, ये 8 है, लेकिन यहाँ पे देखो आउटपुट में बहुत कम है. तो क्या कर दिया, जो हाई वोल्टेज था वो सिग्नल रेशियो ज्यादा होता, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं. तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा. इसलिए मैंने जो दूसरा चीज तुमको दिखाया था ना, इधर इनपुट सिग्नल, इधर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो वो क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था, क्योंकि कंप्रेसर है, उस हाई सिग्नल को वो कंप्रेस कर देगा. सो दैट इज द केस which we are getting in the compressor circuit. That is in the case of compressor circuit. That is compressing the high signal voltage.
and it is having in the transmitting section. Okay, तो रिसीवर में क्या हो रहा है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. ओके, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. देखो ये कॉम्प्रेशन ट्रांसमीटर में था, ये देखो रिसीवर में उल्टा ऑपरेशन. देखो रिसीवर यहाँ पे देखो हाई वोल्टेज के लिए ज्यादा शिफ्ट हो गया. दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा जो था, ये कंप्रेसर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्लीटली अपोजिट हो गया. ठीक है, देखो यहाँ पे हाई वोल्टेज के लिए हाई हो गया, जो प्रीवियसली कंप्रेस कर दिया था, लेकिन वो ज्यादा हो गया देन द लोअर वन. सो दैट्स इट इज कॉल्ड एक्सपांशन. एक्सपांशन किसका हो रहा है, जो प्रीवियसली कंप्रेस हुआ था. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये जो कंप्रेशन एंड एक्सपांशन दोनों मिलके कंपाउंडिंग बन गया. And the motto is to have fixed signal to noise ratio. That means it is equivalent to non-uniform quantization. We are not changing the step size, but यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं without using the varying the step size here in the case of PCM system. Okay, so देखो ये जस्ट ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जितना बढ़ गया था उतना ही, जितना कमा गया था यहाँ पे उतना ही बढ़ा गया. इसलिए ये लीनियर हो गया. मीन्स तुम्हारा मैसेज का ना, मैसेज का कोई नहीं दिक्कत होगा, कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, कोई नहीं एरर होगा, कोई नहीं लॉस होगा. इसे लीनियर रिलेशन, जितना ही पहला वाला कंप्रेशन में जो चेंज था उतना ही एक्सपांशन में उतना ही वो एडेड हो गया, जितना ही कमा था उतना ही बढ़ गया. मीन्स द सिग्नल का स्ट्रेंथ रिमेंस कांस्टेंट. सो ये एक्सपांशन कहाँ होता है, रिसीवर में होता है, और कंप्रेशन कहाँ होता है ना, ट्रांसमीटर में होता है. कंप्रेशन में क्या होता है, using the compression technique, what I am showing here the characteristics that reduces the strength of the high voltage signals. एक्सपांशन में क्या होता है, which was reduced at the transmitter, that signal strength must be improved here. That is called the expansion technique. So कुल मिलाकर compression and expansion, we are having the compounding technique. It is of two types, A-law and mu-law. So A-law and mu-law में फर्क क्या है, no, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा चीज. सो क्वेश्चन में आ सकता है तुम्हारा, what is the disadvantage of uniform quantization technique in the PCM system? Number one. Number two is directly you can use non-uniform quantization technique in PCM system. If it is no, then what is the solution? So now you will come into the consideration of compounding technique. Compounding क्या है, compression and expansion. Compounding plus expanding, that is compounding. Compression में क्या होता है ना, हाई सिग्नल स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया जाता है, that is called the compression technique. That is achieved at the transmitting section. Compression हो गया. एक्सपांशन कहाँ होता है, एक्सपांशन रिसीवर में होता है, जस्ट द ऑपोजिट फेनोमेना ऑफ द कंप्रेशन. तो वहां पे जितने सारे वोल्टेज को रिड्यूस किया गया था, यहाँ पे वो एनहांस हो जाए. तो एक्सपांशन और एक कंप्रेशन बीच में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर होगा. तो पहले तुम्हारे पास क्या होगा, सिग्नल होगा. सिग्नल के पास तुम्हारे पास क्या होगा, एक कंप्रेसर होगा. कंप्रेसर के बाद तुम्हारा क्या होगा ना, तुम्हारा यूनिफॉर्म क्वांटाइजर होगा. उसके बाद क्या होगा ना, एक्सपांडर. ओके, सो दिस इज द केस. सो सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी होगा. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पॉजिटिव पार्ट. ओके, so negative amplitude ka practically we are not using here. So it's a mathematical tool, is symmetrical nature, so that's why you can show in the negative part also. But if you show only the positive, that also okay, no problem. So ये दो टाइप का होता है, डिफाइंड टाइप्स ऑफ कंप्रेशन टेक्निक्स होता है. ये A-law होता है, mu-law होता है. समटाइम्स ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, A-law एंड mu-law. ठीक है, तो ये हम लिख के दिए हैं. तो देखो यहाँ पे म्यू लो में क्या होता है, ये म्यू वैल्यू जब जीरो होता है, कैसे, व्हाई इज म्यू, म्यू
व्हेन यू आर चेंजिंग द दिस पैरामीटर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज होता है। देखो म्यू जब 0 होता है मीन्स ये लीनियर हो गया, मीन्स तुम्हारा कोई कंप्रेशन और एक्सपांशन कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और कितने तुम्हारा कंप्रेशन रिक्वायरमेंट है, कितने है, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया है। म्यू इक्वल 5 तो इस तरह होता है, म्यू जब 225 होता है तो इस तरह होता है। सो वो कंप्रेशन का भी ये एक तरीका है, हाउ टू go how much deeper in the compression. So that will be controlled by changing mu. Okay, so that is the case. So by changing mu, that characteristic has been changed here. Okay, ठीक है। So that is case your that is the case of your compressor techniques. So normalized input means क्या है, normalized input means ये इनपुट का तुम जब if you consider in the case of normalized power, so in that case the resistance will be unity. In similarly upper y side में भी normalized output ही होगा। तो ये था तुम्हारा कंप्रेसर टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा शॉर्ट नोट्स आ सकता है, और भी जैसे मैंने बोला उस तरह भी तुम्हारा कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है। So whenever I am discussing chapter wise what are the possible questions, just I am telling you every time. So just go through question, maybe may be represented by some different way, but answer you have to give the answer by considering all those questions. But more or less the answer is remains same. शॉर्ट नोट्स होगा भी तो तुम ऐसे लिखना होगा, और क्वेश्चन में आएगा तो डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट वे। और शॉर्ट नोट में आ गया कंपाउंडर, तो वही तुम्हारा सेम ही होगा, आंसर तो सेम है। ठीक है, तो ये भी ये लॉ है, ये का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो ये चेंज करके ये कांस्टेंट होता है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 2 और 87.5। दीज आर बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो दीज आर experimentally proved values, so we can't change all these. Okay, so this is fixed for the system. So this is your yellow mulo, but yellow mulo both are doing the compression. Okay, compression, there is a compounding techniques. Either you can use A, either you can use mu, but their operation is same. They are compressing the signals. Okay, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ऑफ पीसीएम हम दिए हैं, जस्ट यू गो थ्रू, टेलीफोनी में यूज होता है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, और सम डिसएडवांटेज भी है, हाँ। So you simply go through, I have written it is in the point wise, okay, ठीक है। Now I am coming, now if you have any doubt regarding the basic concept of non-uniform quantization, basic concept of uniform quantization, what is the basic difference between uniform and non-uniform quantization. So if you want to give some answer about the difference between the uniform and non-uniform quantization techniques, so in that case whatever you are writing 1 2 3 4 ठीक है, लेकिन उसके साथ वो जो मैंने ग्राफ तुमको दिखाया था वो ग्राफ भी तुमको देना है, बिकॉज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या हुआ और यूनिफॉर्म में वो क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, लिनियरली वो इंक्रीजिंग होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। दैट इज योर मोटो, दैट इज योर गोल, टू हैव कांस्टेंट सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। सो इतना ही तुम्हारा था पीसीएम के लिए, पीसीएम खत्म हो गया। पीसीएम के लिए, पीसीएम में क्या था, पीसीएम ट्रांसमीटर रिसीवर सिस्टम, पीसीएम में वो कैसे वो एनालॉग सिग्नल वो डिजिटाइज होता है, और उसके बाद वो कैसे वेव फॉर्म होता है। अच्छा, पीसीएम का बैंडविड्थ कितना है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे तुम्हारा क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कितना होता है, ठीक है। अच्छा, क्वांटाइजेशन नॉइज कितना होता है। अच्छा, उसके बाद सिग्नल टू नॉइज रेशियो, हाउ मच इज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, दैट वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन डीबी में भी हम लोग कैलकुलेटेड किए हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का डिसएडवांटेज किए हैं, दैट आल्सो आई हैव डिस्क्राइब्ड। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्यों हम लोग कंसीडर किए थे, नॉन यूनिफॉर्म हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते हैं, तो वो हम कैसे वो बना पा रहे हैं, दैट इज इन द मींस ऑफ कंपाउंडिंग टेक्निक, दैट आल्सो आई हैव डिस्क्राइब्ड। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का
दोनों पार्ट क्या होता है, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। कंप्रेशन में क्या होता है, एक्सपांशन में क्या होता है, एंड उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सपांशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो वो कितने क्लासिफिकेशन है, ए लॉ म्यू लॉ होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग कुछ असाइनमेंट देंगे यहाँ पे इस हफ्ता का एंड तक। तो दैट इज द केस ऑफ पीसीएम। तो पीसीएम में we have used at least 3 bits. Theoretically, I'm not dealing with the commercial one. Okay, I'm not dealing with the commercial one. Commercial में उससे ज्यादा होता है। But the theoretically, for understanding level के लिए, what we have used here 3 bits. Okay, 3 bits use किए थे. Okay, and how many quantization level was also there? 8. Number of bits था 3. Bandwidth कितना लगता था? मैंने बोला था n into fm. मीन्स नंबर ऑफ बिट जितना ही होगा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिड्यूस द साइज ऑफ द बैंडविड्थ, व्हाट यू हैव टू डू, you have to try to reduce the number of bit requirement to represent individual sampling point. That is the most case. You have to reduce the requirement of the number of bit for representing single sample value. इसी में जो सिग्नल जो सैंपल वैल्यू था, एवरी वन के लिए हम लोग कितने बीट यूज किए थे, 3 किए थे फॉर आवर एग्जांपल। ओके, तो नाउ साइंटिस्ट थॉट हाउ टू रिड्यूस दिस नंबर। ये बिट नंबर हम कैसे रिड्यूस कर पाए, ये सोच में पॉइंट है। वहां पे क्या था पीसीएम में, वी हैव यूज द एज ए होल सिग्नल, द फुल सिग्नल, वी आर sampling the full signals at a time. But scientists thought, in spite of sending the whole signal, listen carefully, in spite of the sending the whole signal, if we send it segment wise, okay, part by part, okay, means क्या है, in spite of sending the whole signal, पीसी में क्या किए थे हम लोग, पूरा सिग्नल जो था, पूरा सिग्नल का हम लोग क्वांटाइजेशन किए थे, सब बिफोर सैंपलिंग किए थे, फिर क्वांटाइजेशन कोडिंग किए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होल सिग्नल को एक साथ में हम नहीं भेजेंगे, पार्ट बाय पार्ट भेजेंगे। मान लो तुम्हारे पास ये सिग्नल, तो हम क्या दिस पार्ट को हम भेजेंगे पहले, दिस मच ओनली। उसके बाद दैट मीन्स m k minus 1, this portion if it is empty, if the signal is empty or xt whatever, तो ये if it is kth point, kth sample point, तो हम लोग क्या, ये क्या होगा, k minus 1 होगा, उसका पहला जो होगा k minus 1, तो mk minus mk minus 1, ये जो सेगमेंट है that we are sending, not the as a whole signal। फिर क्या होगा सेकंड पार्ट में, क्या होगा, दिस पोर्शन को, only this portion, okay, we are sending this portion only। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद दिस पोर्शन, सेगमेंट वाइज, नॉट द सिग्नल, दिस मच, ओके। तो ये फायदा क्या होगा बाबू, क्या फायदा होगा बोलो, एज यू आर सेंडिंग ये स्मॉल, मान लो दिस मच, दिस सेगमेंट, ओके, मान लो दिस सेगमेंट, ओके, दिस पोर्शन, ओके, सो ये क्या होगा, एज द एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, तो तुमको क्या लाएगा, fewer number of quantization level, और नंबर ऑफ बीट भी कम होगा। तुम तो एक साथ में पूरा सिग्नल को नहीं भेज रहे हो, तुम थोड़ा थोड़ा करके भेज रहे हो, इसलिए क्या होगा, प्रीवियसली जो 8 क्वांटाइजेशन लगा था, दैट इज 3 बीट, यहाँ पे हम लोग 2 बीट यूज कर सकते हैं, तो कितना क्वांटाइजेशन लेवल होगा, 4 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिग्नल जो पीक टू पीक एक्सकर्शन है,
ये एम्पलीट्यूड पीक टू पीक एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, ये लेंथ, ये ड्यूरेशन थोड़ा कम हो गया, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन लेवल थोड़ा कम लगेगा, नंबर ऑफ बीट भी रिड्यूस होगा। तो ये है ये जो सेगमेंटेशन ये कहाँ होगा? ये ट्रांसमीटर में होगा। तो रिसीवर में तुम क्या करोगे, ये जो पार्ट बाय पार्ट बाय जो आ रहा है उसको तुमको एक्यूमुलेट करना है। फर्स्ट वो प्रेडिक्ट करना होगा, प्रेडिक्शन करना होगा जो वो कहाँ पोजीशन कौन कहाँ वो बैठेगा, ये बीच में बैठेगा, वो शुरू में और ये अंत में होगा। तो इसलिए तुमको एक प्रेडिक्टर लाएगा। The predictor will predict the signal levels and that will be placed in a particular position. And उसके बाद क्या होगा ना, एक एक्यूमुलेटर होगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, रिसीवर में वो जो तुम पार्ट बाय पार्ट बाय भेज रहे हो उसका एक साथ में वो ऐड करते रहेगा। तो वो क्या होगा, रिसीवर में आके वो एक साथ में फिर मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस आफ्टर PCM we have adapted. ये डिफरेंस करके 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 ये पार्ट। So that's why the technique, the name of the technique is called DPCM. What is called? DPCM means PCM is attached there. The main theme, main process is same, but यहाँ पे हम लोग कम बीट यूज कर रहे हैं। differential PCM, the differential pulse code modulation technique, because we are sending difference part. Okay, different part को हम लोग भेज रहे हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक। किसी को भी डाउट है तो बोलो, पीसीएम में डीपीसीएम के साथ क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, बेसिक चीज क्या डिफरेंस है? तो वहां पे पूरा एज ए होल सिग्नल का सैंपलिंग हुआ था, यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट सेगमेंट करके हम लोग भेज रहे हैं। एज वी आर सेंडिंग पार्ट बाय पार्ट, so at the receiver there should be one predictor circuit that will predict the amplitude levels, and after that there should be some accumulator. Okay, so that is the case. बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफिकल्टीज है तो बोलो। दैट इज योर डीपीसीएम टेक्निक, सेमेस्टर में आ सकता है। बेसिक डिफरेंस क्या है डीपीसीएम के साथ पीसीएम का, बट आई एम टेलिंग वेरी सिंपल वे, आई एम टेलिंग यू इन द वेरी सिंपल वे। If you directly go through the book, that will be very much difficult for you. So thing is that's why I am showing it very simpler way so that you can understand. So यहाँ पे क्या है, पार्ट लेके हम लोग ये भेज रहे हैं। किसी को भी डाउट है तो बोल, कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है तो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, बोलो। कुछ डाउट है तो बोलो, अभी भी तुम्हारे साथ टाइम है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस एम्पलीफायर लगेगा। व्हाट इज द डिफरेंस एम्पलीफायर? बाय यूजिंग यू हैव डिजाइन्ड डिफरेंस एम्पलीफायर। वो क्या करेगा, एमटी एंड एम बार के साथ वो डिफरेंस करेगा। देन वो जो डिफरेंस पार्ट तुम भेज रहे थे, वो जो डिफरेंस पार्ट मैंने तुमको बोला था पार्ट बाय पार्ट, दैट पार्ट आई एम टेलिंग इट इज ए डेल टी। वो जो सिग्नल का जो पार्ट बाय पार्ट था यहाँ पे, ठीक है, जो पार्ट बाय पार्ट था ये यहाँ पे, दिस पार्ट, ये डेल्टी वो डेल्टी को हम लोग सैंपल करें, फिर वो डेल्टी पार्ट को हम क्वांटाइज करें। तो वो पार्ट थोड़ा कम हो गया, इसलिए नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल भी थोड़ा कम लाएगा, तो नंबर ऑफ बीट भी थोड़ा कम लाएगा। दैट इज द केस। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हियर, तो डिफरेंस एम्पलीफायर लाएगा, जो वो पार्ट वो डिवाइड करेगा, वो डिफरेंस पार्ट को सैंपल एंड होल्ड, सैंपलिंग हो रहा है। ओके, सो सैंपलिंग के बाद वो क्या हो गया, डेल के हो गया नेम, एंड क्वांटाइजर का डेल क्यू के हो गया, जस्ट नेम चेंज हो रहा है एज इट इज क्वांटाइजिंग। तो वो सिग्नल आ गया,
ना देखो नीचे में हम क्या किए हैं, थोड़ा ट्रांसमीटर में थोड़ा रिसीवर का थोड़ा पार्ट हम लोग यहाँ पे बनाया है। क्यों? वो जो थोड़ा पार्ट इधर आ गया, प्रेडिक्टर में आ गया, वो प्रेडिक्ट करेगा, वो बीच में बैठेगा ना ऊपर में बैठेगा ना नीचे में बैठेगा। सो दैट प्रेडिक्शन विल बी टेकिंग प्लेस हियर, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद वो पूरा सिग्नल आके ओरिजिनल जो सिग्नल है उसके साथ वो सबट्रैक्ट होगा, है ना। सबट्रैक्ट होने के बाद वो डिफरेंस सिग्नल मिल जाएगा। तो कैसे होगा ये देखो, देखो पहला पार्ट ये आ गया, मान लो पहला पार्ट आ गया एक्यूमुलेटर पास। नाउ तुम्हारा एम्प्टी तो इनपुट में है, डिफरेंशिएटर में वन इनपुट में एम्प्टी है। मान लो तुम इस पॉइंट पे तुम सेगमेंट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्प्टी। नाउ ये जो सिग्नल वन इनपुट में डिफरेंशिएटर में दूसरा जो इनपुट है वहां पे दिस पोर्शन आ गया। तो ये पूरा सिग्नल के साथ ये दिस पोर्शन जब माइनस हो जाएगा तब तो क्या मिलेगा, दिस पोर्शन बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ पार्ट का सैंपलिंग होगा, क्वांटाइजेशन होगा, आउटपुट में चला जाएगा, फिर वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो पहला पार्ट कितना था, 20% था, उसके बाद ये पार्ट घूम के आ गया, इस एडिशन हो गया नीचे में, फिर इतना सा जो डिफरेंशिएटर का इनपुट में ये एम्प्टी है, और यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है ये एम बार टी यू कैन राइट, दोनों का डिफरेंस हम लोग ये डेल टी मिल रहा है। तो ना क्या होगा, एमटी कितने पहुंच गया, 20% पहुंच गया एमटी। तो पूरा एमटी के लिए पूरा है। और इधर क्या आ गया, ये जो आ गया था एक्यूमुलेटर के साथ, ये एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में क्या मिल जाएगा, 20% तो पहले हुआ था, 20% भी ऐड हो गया एक्यूमुलेटर आके, तो 20% अप टू 20% एम बार टी में मिल गया। तो 20% एम बार टी एंड दिस इज योर एम टी, जब माइनस हो जाएगा कितना पार्ट रह जाएगा, 20% मिल जाएगा। 20% का तुम सैंपल करोगे, क्वांटाइज करोगे, उसके बाद वो भी वापस आके एक्यूमुलेटर पास में आ जाएगा। तो क्या हुआ, एम बार टी में पहले कितना था, 20% था, फिर कितना पोर्शन आ गया, 20% आ गया। तो एम बार टी में कुल मिलाकर कितना हो गया, 20% हो गया। अप टू दिस पोजीशन से दिस पोजीशन तक एक्यूमुलेटर में आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। सो एम बार टी में 20% हो गया। नाउ एम टी कितना दूर आ गया, दिस पोर्शन आ गया। सो ये था एम टी और एम बार टी था 20%, तो माइनस करोगे क्या मिलेगा, माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा ना, मिल जाएगा 20% होगी, that is now del t. So that will go to the output, that will be sampled, and that will be quantized. So that's why we are having predictor and accumulator. Okay, so in that way we are differentiating. तो बोलो किसी को भी कुछ डाउट है कैसे हम ये डिफरेंस हम लोग बना रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो पिक्चोरियल